The Lord is worthy of all praise and worship and adoration. वो राजा सारी महिमा और आदर के योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। Lift your hands and say अपने hallelujah. हाथों को ऊंचा कर कहिए हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Okay. You know, if you look at Hebrews 2:14, अगर हम इब्रानी उसकी पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 14 वचन अगर देखते हैं, it says, "For as much as the children are partakers of flesh and blood, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, he also himself likewise took part of the same, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। Verse 15, and delivered them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. वचन 15, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। Jesus through his death has abolished death. यीशु ने अपने मृत्यु के द्वारा मृत्यु का नाश कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। He is the only one who conquered death. वो इकलौता है जिसने मृत्यु को जीत लिया। Death had no power over him. मृत्यु का अभी उस पर कोई सामर्थ्य नहीं है। Death could not hold him in the grave. मृत्यु उसको उस कब्र में रख नहीं सकी। He is the only one to rise again from the dead. वो इकलौता है जो मृत्यु से जीवित हो उठा। The blood of Jesus Christ has destroyed the enemy for once and for all. यीशु के लहू ने उस शैतान को हमेशा के लिए हरा दिया। The fear of death has been obliterated. It's been removed out of us completely. जो मृत्यु का जो भय था वो हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। Hallelujah. हालेलुया। So, when we partake in the Lord's Supper, तो जब हम प्रभु भोजन में सहभागी होते हैं, it's always to give us a reminder that death has no authority over you and me. तो वो हम इसलिए लेते हैं कि हम खुद को याद दिलाए कि मृत्यु का हम पे कोई अधिकार नहीं है। Death in any form, in your finances, in your health, in your relationship, death has been abolished. हमारे शरीर पर, हमारे फाइनेंसेस में, हमारे हर एक सिचुएशन में मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं। मृत्यु हमेशा के लिए हमसे दूर की जा चुकी है। That's the reason when we partake in the Lord's Supper, the Lord is giving us a reminder and telling us that death has no authority and power over you. और वैसे ही जब हम प्रभु भोजन में भाग लेते हैं तो प्रभु हमें ये याद दिलाता है कि मृत्यु का हम में से किसी पर कोई अधिकार नहीं, कोई शक्ति नहीं। We don't have death, we have life and life in abundance. हमें मृत्यु नहीं लेकिन जीवन और बहुतायत का जीवन है। Life in every area of our lives. हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में जीवन है। Hallelujah. हालेलुया। The scripture says that the last man, Christ Jesus, he became a quickening spirit. तो वचन ऐसा कहता है जो अंतिम मनुष्य था, जो यीशु था, वो जीवित आत्मा हुआ। So when you're taking part in the Lord's Supper, know for sure that death has no authority over you. तो ऐसे ही जब हम प्रभु भोजन में भाग लेते हैं तो ये जान ले कि मृत्यु का हम में से किसी पर कोई अधिकार नहीं है। Because Jesus by his death destroyed death forever. यीशु ने अपने मृत्यु के द्वारा मृत्यु का हमेशा के लिए नाश कर दिया है। Can you imagine Jesus by his death destroyed death forever? क्या हम ये सोच सकते हैं कि यीशु ने खुद की मृत्यु के द्वारा मृत्यु का हमेशा के लिए हरा दिया? Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Oh God, I give you praise. Hallelujah. हालेलुया। Oh, hallelujah. My God, I feel like saying million times hallelujah. मुझे ऐसा लग रहा है कि Thank मैंने you, करोड़ों बार Hallelujah. कहना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। My God, thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Wonderful Father. अद्भुत प्रभु। Gracious Savior. See, verse 2:15 says, He delivered us and delivered them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. He has delivered us from the fear of death. Amen. Not only death, but also fear of death. We have been delivered from the fear of death. Amen. वचन 15, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। तो यीशु ने केवल मृत्यु से ही नहीं लेकिन मृत्यु के भय से भी हमें छुटकारा दिया है। So when we partake in the Lord's Supper, know for sure that death has no authority over you.
तो जब हम प्रभु भोजन में भाग लेते हैं तो हम ये निश्चय जान ले कि मृत्यु का हम पे कोई अधिकार नहीं है. And the other thing, the reason why we partake in the Lord's Supper, it's called communion. तो हम प्रभु भोजन में और एक कारण है जिसके लिए हम भाग लेते हैं, वो है सहभागिता. Say communion. कई सहभागिता. The meaning of the word communion means come and have union. उसका अर्थ यह है कि मेरे साथ आओ. The meaning of the word union means becoming one with Him. उसका अर्थ यह है कि मेरे साथ एक हो जाओ. Hallelujah. हालेलुया. So you get dissolved in Him. हम उसमें घुल मिल जाते हैं. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. हालेलुया. So let's partake in the Lord's Supper. तो आइए हम इसमें भाग ले. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Father, we give you praise. पिता हम आपकी स्तुति करते We हैं. give you glory that you by your death you have abolished death, Lord. प्रभु आपने अपनी मृत्यु के द्वारा मृत्यु को हमेशा के लिए हरा दिया, निकाल दिया. And your blood और आपका लहू speaks बोलता है better things than that of Abel, Lord. हाबिल से ज्यादा अच्छी बातें आपका लहू हमारे लिए बोलता है. Your blood speaks, Abba Father, आपका लहू हमारे लिए बोलता है प्रभु that we have been washed and cleansed, कि हम धोकर शुद्ध किए जा चुके हैं, that we have been redeemed, Lord, कि हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा हो चुका है, that we have been purchased. कि हम खरीदे जा चुके हैं. We give you praise, Father. आपको स्तुति देते हैं प्रभु. We give you glory. हम आपको महिमा देते हैं. Hallelujah to the Lamb. हालेलुया. उस मेमने के लिए. Worthy is the Lamb. वो मेमना योग्य है. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Abba Father. धन्यवाद पिता. Abba Father, we give you praise. पिता हम आपकी स्तुति करते We हैं. give you the glory. हम आपको महिमा देते हैं. For thine is the kingdom, the power and the glory, Lord. क्योंकि राज पराक्रम महिमा आपकी है प्रभु. In Jesus' name. यीशु के नाम से. Amen. आमेन. Let's partake. Thank you, Father. इसमें God. भाग लेंगे. Thank you, Jesus. We give you glory, Father God. धन्यवाद यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं We प्रभु. thank you for your body. Thank you for your blood, Lord. आपके लहू के और आपकी देह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. Your body was broken and our bodies have been made whole, Lord. प्रभु आपका शरीर तोड़ा गया ताकि हमारा शरीर परिपूर्ण हो सके. And your blood has made us one with you, Lord. और हमारा आपके लहू ने हमें आपके साथ एकत्रित कर दिया है. In Jesus' name. यीशु के नाम से. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Lord. Thank you, sir. Hallelujah. Yes. किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्री में हम सभी का स्वागत करते हैं. मुझे नए चेहरे दिख रहे हैं. हम आपका स्वागत करते हैं किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज में. यस, अभी हम आगे बढ़ते हैं. हम वचन में बढ़ेंगे. वचन से पहले हम समृद्धि का वचन सुनेंगे. समृद्धि का वचन के साथ ही हम वचन में ही आगे हम बढ़ेंगे. समृद्धि का वचन बांटने के लिए मैं ब्रदर मनोज को बुलाना चाहती हूँ और साथ ही में वो आगे हमारे साथ वचन भी बांटेंगे. Thank you, Jesus. Praise God. कितने लोग खुश हैं? Thank you, Jesus. Wow. So, समृद्धि का वचन हम सुनने वाले हैं. मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग अपना दान और दशवांश लाए उसको अपने हाथ में पकड़िए, या जो भी अगर आप ऑनलाइन पे करने वाले हैं तो अपने मन में उस चीज़ के बारे में सोचिए, उसको तैयार करके रखिए अपने मन में. एक वचन से हम शुरू करेंगे. मत्ती का 6:33. Jesus, we love you.
थैंक यू लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है बट सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं क्या? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। अब ये सब वस्तुएं जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं, यीशु यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, वो उन सारी चीज़ों के बारे में उसके ऊपर लिखा हुआ है कि शरीर को जो चीज़ें लगती है, कपड़ा हो गया, खाना हो गया, रहना हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि इन चीज़ों के पीछे तुमको नहीं भागना है एक विश्वासी होने के नाते। आगे लिखा है Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. अतः कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। कल के बारे में चिंता नहीं करने के लिए यीशु मसीह हमको बोल रहे हैं, लेकिन आज दुनिया में हम देखते हैं विश्वासियों में भी कि हमको भविष्य की चिंता लगी रहती है कि मेरा क्या होगा, मेरा करियर कैसे होगा, मेरे बच्चे बड़े होने के बाद में मुझे देखेंगे नहीं देखेंगे, या मेरी कॉलेज पढ़ाई ख़त्म होने के बाद में मुझे नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। चिंता में हमारा जीवन जा रहा है ना। हमारे जीवन के हर एक पहलू को अगर हम देखेंगे, पढ़ाई से लेकर नौकरी लगने से लेकर हर एक जीवन के हिस्से को मोटिवेट करने के लिए चिंता हमको दिया जाता है कि बचपन में माँ बाप बोलते हैं कि अगर तू अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा तो सब लोग तेरी बुराई करेंगे। और उसके बाद में एक कंपटीशन वाला माइंड बनता है जिसमें हम सब एक रेस में दौड़ रहे हैं, है ना। इसका एंड रिजल्ट क्या है किसी को नहीं पता है, लेकिन सबको पता है कि मेरे को दौड़ना है, और हम इन सारी चीज़ों के पीछे जाते हैं। इसका 32 वर्स पढ़ सकते हैं, 32 वचन, मत्ती का 6:32। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। यीशु बोल रहे हैं कि अन्य जाति के जो लोग हैं वो इन सारे चीज़ों के, कपड़ा, खाना या जो भी उनके ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनके पीछे वो लोग लगे रहते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है। फिर भी यीशु बोल रहे हैं कि इनके पीछे तुमको नहीं भागना है ना। अन्य जाति के लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन तुमको इसके पीछे नहीं भागना है। क्यों? क्योंकि जब तुम स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजते हो, परमेश्वर इन सारी चीज़ों को हमारे जीवन में जोड़ता है। हमको दुनिया के जैसे चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। हर एक को काम भी करना है जो परमेश्वर ने हमको दिया है, लेकिन एक नया माइंडसेट में विश्वास कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ सालों में परमेश्वर हमारे बीच में उत्पन्न करेगा, जहाँ पे हम नौकरी को अपना स्रोत ऐसा नहीं देखेंगे, जहाँ पे हम अपने पति या पत्नी को अपना स्रोत ऐसा नहीं देखेंगे, जहाँ पे हम बिजनेस को अपना स्रोत ऐसा नहीं देखेंगे, है ना। अब क्या हो रहा है कि जब नौकरी के लिए किसी को जाना पड़ता है तो उसको टेंशन ये होती है कि मेरी सिफारिश कोई लगाएगा या नहीं लगाएगा, लेकिन परमेश्वर जब हमारे साथ है तो उसका अनुग्रह, उसका फेवर हमारे ऊपर बनता है। और हम में से बहुत लोगों ने इसका अनुभव किया है ना। इंटरव्यू फेल करके हमको नौकरी परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है। उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, लेकिन इन चीज़ों में हम भी अभी चलना शुरू कर रहे हैं। तो मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आगे आने वाले दिनों में इसमें और गहराई से हम सब चलने लगेंगे और जानेंगे कि दुनिया के लोग जिस तरह से एक रेस में चल रहे हैं, एक रेस में दौड़ रहे हैं, जहाँ पे उनको अपना जीवन का हर एक फोकस सिर्फ उस काम पे लगाना पड़ता है, सिर्फ उस पैसे कैसे हम कमाएं इस पे अपना मन उनको लगाना पड़ता है। जबकि परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमको पैसों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये वचन कह रहा है कि अब अगर हम परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजेंगे तो पैसे और ये सारी चीज़ें हमारे पीछे लगेंगी। निर्गमन क्या, डिट्रोनॉमी को क्या बोलते हैं, व्यवस्था विवरण में आई थिंक उसके 28 में जो आशीषें लिखी है ना, अगर किसी ने पुराना नियम पढ़ा है तो उसमें आधे आशीषें भी लिखी हैं, श्राप भी लिखे हैं। और उन आशीषों के बारे में ऐसा लिखा है कि वो तुम्हें, दे विल ओवरटेक यू, द ब्लेसिंग्स विल ओवरटेक यू, है
है ना, परमेश्वर की जो आशीष है वो तुमको ओवरटेक करेंगी। और उस शब्द का अगर हम मतलब समझे तो वो शब्द ऐसे बोलता है कि आप सोचिए आप भाग रहे हो ज़ोर से, आपके पीछे लोग पड़े हैं और आप ज़ोर से भाग रहे हो उनसे दूर जाने की, और ये लोग आप तक पहुंच जाते हैं और आपको दबोच के आपको ज़मीन पे पटक देते हैं। वो शब्द का अर्थ ऐसा होता है, यानी परमेश्वर की आशीषें इस तरह से आपके पीछे भाग रही है कि आपको पकड़ के वो ओवरटेक कर लेंगे। तो हमको उन आशीषों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू जीसस। सो मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरी आशीषों के लिए, तेरे विश्वास के लिए और इस बीज के लिए जो आज लोग बोने वाले हैं प्रभु। कि तेरा वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर को देते हैं तो तू हमको बहुतायत से देता है, और तू हमारा स्रोत है प्रभु। हमारी नौकरी, हमारे अपने टैलेंट, स्किल्स, हमारे पहचान के लोग, ये हमारा स्रोत नहीं है, लेकिन तू हमारा स्रोत है। हम ये विश्वास करते हैं कि शायद पूरी दुनिया में अकाल अगर आ रहा हो तो फिर भी हमारे घर में किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि तू हमारा स्रोत है और हमारे पास हमेशा ज़्यादा होगा। दैट वी विल अबाउंड टू एवरी गुड वर्क। हर एक अच्छे काम में देने के लिए हमारे पास बहुतायत से चीज़ें होंगी, ताकि तेरे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम तेरे राज्य में चीज़ें डालते जाए प्रभु। तू विश्वास योग्य है, इसलिए धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। सो ऑफरिंग बॉक्स वहाँ पर है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके इस पे QR भी आएगा, आप वहाँ पे भी स्कैन करके ऑफरिंग दे सकते हो। थैंक यू जीसस। We love you, Lord. Thank you, Father. Jesus, be glorified. Lift your name on high. Be magnified, Lord. Thank you, Jesus. Vishu, please. Thank you, Father. हम अपने मन को प्रभु पे लगाएंगे कुछ समय के लिए। तेरे खाशे तेरे खाला राधा। यदि आपको अन्य भाषा आता है तो अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। रे खा राशि तेरे खाला दारा से थे तेरे खाला राधा राशि तेरे खा हा तारा शे काला द्रे का राहा शे तेरे जिदे दे दे रे खाला राशि तेरे रेगाला ताता राशि तेरे बेसे खारा रीगला हाथा दी दे शिंते नेबरो खोलो रोशे दे रे बाख हसिया तारा रदादारा शिगला तारा बोहो शे तेरे बे दे रे खाला रा तीसरा बोहो तुर खम्बो रबले करहादारा शे तेरे गा रेजे रीगला तरा गाहा बोरो शे दे रे हेका री दे रे खाला रा शे दे रे Zede de re kala ri shatara saburo duri ki alara mambo nagarehe kala rasidere dirigara shidere stara do koloro shihi arabahanta। धन्यवाद यीशु तेरे लहू के लिए, तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद पिता, कि जिसके द्वारा तूने हमको एक बार में परिपूर्ण किया है। तेरे बेटे बेटियां हमको तूने बनाया, इसलिए धन्यवाद। शिवलो तोरो शिगला हास्तारा बोहो निमेरे खाम होलो रो जिदेरे टेकेरी आनामंदो रो शिबरी खाहादारा सातारे खालारबो बेमेरे खालादारबो से दिरे शिगली अनंतरबो कोरोबो शितेरे जिदे दे दे खाला हातारबो को नमरो शिबरे दिरे खालाहंदा। Jesus, be glorified, Lord Jesus. Be glorified in this place. Be lifted high, Father. Niboroshe kalada sitere dedere kalahara shederebe. Jesus, be magnified. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. कितने लोग अपने आप को अच्छा समझते हैं? 2 3 4।
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज हम इस चीज पर देखेंगे कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है। थैंक यू जीसस। कोलोसियम में हम जाएंगे। कोलोसियों का 1:22। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। आमीन। 21 से मैं पढ़ता हूँ। And you who once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now he has reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy, blameless and above reproach in his sight. परमेश्वर ने यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा क्या किया है? हिंदी में पढ़िए। तुम जो पहले पराये थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। परमेश्वर ने यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आपको और मुझे, हम सबको अपनी दृष्टि में निर्दोष और क्या? पवित्र और क्या? निष्कलंक। इंग्लिश में लिखा है होली, ब्लेमलेस एंड अबव रिप्रोच इन हिज साइट। निष्कलंक है ना। होली यानी पवित्र का मतलब क्या है? कि मैंने कल पाप किया था, आज मैंने दिन भर पाप नहीं किया, ये पवित्रता है। पवित्रता का मतलब क्या है? समय के शुरुआत से लेकर अभी तक या समय खत्म होने तक उस व्यक्ति ने पाप नहीं किया है। ऐसा कोई है यहां पे? नहीं? हाँ, नहीं, इन क्राइस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, बट ऐसा कोई है यहां पे जिसने समय के शुरुआत से लेके पृथ्वी के अंत तक एक भी पाप नहीं किया? यीशु के अलावा कोई था? लेकिन यह वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने सामने, है ना, प्रेजेंट टू हिमसेल्फ, होली, ब्लेमलेस एंड अबव रिप्रोच, पवित्र, यानी संसार के शुरुआत से अंत तक उसने कोई भी पाप नहीं किया, ऐसा एक व्यक्ति के बारे में यहां पे लिखा है। होली, ब्लेमलेस। ब्लेमलेस को क्या है? दोष रहित ना, निर्दोष। कितने लोग निर्दोष हैं यहां पर कि बचपन से कोई भी चीज आपने किया नहीं है गलती, है ना? कोई भी ऐसा पॉइंट आपके पास नहीं कर सकता कि इसने दूसरी में पेंसिल चुराया था, ऐसा कोई नहीं बोल सकता आपके बारे में। मैंने चुरा के वापस किया था, मम्मी ने मेरे को डांटा था तो, बट निर्दोष नहीं हूं मैं उसमें भी। निर्दोष यानी फिर से पूरे हमारे जीवन काल में कोई भी चीज का दोष हम पे नहीं लग सकता है कि इसके मन में कभी बुरा ख्याल भी नहीं आया। ऐसा कोई है? अपनी क्षमता में हमने कभी किया ऐसा? होली, ब्लेमलेस एंड अबव रिप्रोच। अबव रिप्रोच यानी क्या? निष्कलंक यानी बुरा, मतलब जैसे अभी कुछ लोग महात्मा गांधी को बोलते हैं ना कि ये बहुत अच्छे इंसान थे, यानी ऐसा कि जो बुराई के एकदम ऊपर रहता है, कि बुराई ने उसको छुआ भी नहीं है। अबव रिप्रोच, कि उस पर दोष हम लगा ही नहीं सकते। अब ऐसा कितने लोग ये तीन चीजें अपने आप में देखते हैं? कोई नहीं? हम इस वचन को फिर से पढ़ेंगे। सबका ध्यान आ गया मेरी तरफ? कोई डिस्ट्रैक्टेड नहीं अभी?
फिर से पढ़िए। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा 21 और 22 पढ़ो। तुम जो पहले पराए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। तुम, आप और मैं जो पहले पराए थे, परमेश्वर के लिए हम पराए थे, परमेश्वर की ज्योति से, परमेश्वर की पहचान से हम दूर थे, परमेश्वर के ज्ञान से हम दूर थे, ऐसे लोगों को आगे क्या है? उसने अब अपनी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा। 21 में ही आगे पढ़ो ना, 21 को फिर से पढ़ो। तुम जो पहले पराए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। बुरे कामों के कारण, हम सिर्फ पराए नहीं थे, है ना। अभी रोड पे बहुत लोग जाते जो पराए थे, हम वैसे नहीं थे, सिर्फ स्ट्रेंजर्स नहीं थे, हम बुरे कामों की वजह से परमेश्वर के दुश्मन बने हुए थे। आगे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में, अब ये अब कब हुआ? 2000 साल पहले। आमीन। क्या किया उसने? उसने अब उसकी शारीरिक देह में, यीशु मसीह के देह में, मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। हमारा मेल परमेश्वर से कर दिया। उसके पहले हम परमेश्वर से अनजान थे, परमेश्वर के हम बैरी थे, उसके शत्रु थे, इसके खिलाफ थे। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल कर लिया। आमीन। ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। तुम्हें अपने समक्ष, यानी परमेश्वर की नजरों में आपको और मुझे वो पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक ऐसा देखता है। यानी जब आपके और मेरी तरफ ये पिता देखता है, वो ऐसा देखता है कि संसार के शुरुआत से लेकर आज तक और भविष्य में भी इसने कोई पाप नहीं किया। कितने लोगों को सुन के अजीब लग रहा है? क्योंकि हम जानते हैं ना हमने पाप किया, कल ही किया था हम जानते हैं। लेकिन यह वचन कह रहा है कि परमेश्वर के सम्मुख हम पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक है। वी आर होली, ब्लेमलेस एंड अबव रिप्रोच बिफोर हिम। और ऐसा हम कैसे हुए? बहुत सारा फास्टिंग प्रेयर से, चर्च को रेगुलर आने से। ये उसने किया है, लिखा है, फिर से पढ़िए। ही प्रेजेंटेड, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। ये सब उसने किया। इसमें हमने क्या किया था? ये वचन के अनुसार एक समय में मैं पापी था, एक समय में मैं परमेश्वर से अज्ञान था, परमेश्वर का पराया था और परमेश्वर का दुश्मन था। वहां से परमेश्वर ने मुझे उठा के पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाया। इसके बीच में मैंने क्या किया? ये सारे काम किसने किए? ये उसने किया है ना। पिता ने हमको बैरी से, पापी से, पाप के कामों से निकाल कर पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक बनाया है उसके सामने। यानी पिता जब हमको देखता है आज, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको देखता है। हमारी गलतियों को वो नहीं गिनवाता है, क्योंकि वो हमको इस तरह से देखता है। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता? ये उसका वचन है ना। मैं चाह रहा हूं सब लोग अपने बाइबल में इसको देखिए, नोट करके रखिए अगर बाइबल नहीं भी है तो। थैंक यू जीसस। उस प्रश्न पे फिर से आता है, कितने लोग अपने आप को इस तरह से देखते हैं हर रोज? कभी महसूस हुआ ऐसा कि यार निष्कलंक, एकदम चकाचक? हम जब आईने में देखते हैं हमको क्या दिखता है? हमारी गलतियां दिखती है ना। एक वचन पे हम जाएंगे। Jesus, we love you.
यूहन्ना का 8 और उसका 9 वचन, जॉन 8:9। आज हम सोचने पे मजबूर होने वाले हैं, है ना। अब तक जो हमारे ख्याल थे अपने बारे में, अपने आप को लेकर जो हम सोच रहे थे अभी तक, वो क्या सही था या गलत था, ये सोचने पे आज हम मजबूर होने वाले हैं। यूहन्ना का 8:9। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। 1 मिनट, 7 से पढ़ो, 7 से 9 तक। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को जो रिलीजियस लोग होते हैं उस समय के, वो लोग यीशु के सामने लाकर डालते हैं और यीशु को वो लोग फंसाना चाहते हैं, क्योंकि यीशु प्रेम के बारे में बात कर रहा है और मूसा का नियम शास्त्र बोलता है कि ऐसे लोगों को पत्थर से मार देना चाहिए। और वो प्रश्न पूछते हैं कि यीशु को अब तू बता इसके साथ क्या करना है हमको। ट्रिकी क्वेश्चन है ना, कि अगर यीशु बोलता है कि छोड़ दो इसको, तो वो लोग यीशु को पत्थर मारेंगे कि तूने मूसा का नियम तोड़ा। और अगर यीशु बोलता है कि पत्थर मारो, तो बोलेगा तू तो हिपोक्रेट है, अब तक तो तू प्रेम बताता था, अभी बोल रहा है मारो इसको। फंस गया यीशु उनकी नज़र में। लेकिन यीशु ने क्या किया, आगे हम देखते 7 से 9 तक। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। थैंक यू जीसस। तो ये स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकल सकती है, बट आज हम सिर्फ इस 9वें वचन पे फोकस करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि जब यीशु मसीह ने ऐसा बोला तो उनके दिलों ने उनको दोष दिया, है ना। क्या फ्रेज यूज किया उधर, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला वहां रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। ओके, इंग्लिश आई थिंक हिंदी में वो स्किप किया है। इंग्लिश में लिखा है, देन दोज हु हर्ड इट बीइंग कन्विक्टेड बाय देयर कॉन्शियंस वेंट आउट वन बाय वन, है ना। इंग्लिश में लिखा है कि जब ये लोगों ने जो लोग पत्थर लेके खड़े थे उस स्त्री को मारने के लिए, उन लोगों ने जब ये चीज़ सुना कि तुम में से जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारो, तो उनके दिलों ने उनको दोष दिया। बीइंग कन्विक्टेड बाय देयर कॉन्शियंस, है ना। और निकलने का भी इनका सीक्वेंस देखो, दे वेंट आउट वन बाय वन बिगिनिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द लास्ट। जो सबसे ज़्यादा उम्र में थे सबसे पहले उनको दोष लगा, सबसे ज़्यादा हैवी कन्विक्शन उनको आया कि अरे सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ, सबसे पहले वो निकला। और ऐसे एज वाइज जो सबसे छोटा बच्चा था उसको सोच रहा होगा कि अरे मैंने कुछ नहीं किया। फाइनली उसको लगा कि हाँ मम्मी ने बोला था मैंने सुना नहीं, तो वो भी पत्थर फेंक के चला गया। यानी ये चीज़ हमको दिखाता है कि हमारा जो विवेक है, कॉन्शियंस जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे काम करता है। हम जब आईने में देखते हैं ना, तो हमको कोलोसियों का 1:22 नहीं दिखता है। क्या दिखता है? कोलोसियों का 1:22 क्या हमने पढ़ा था कि परमेश्वर के समक्ष हम पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक है। वी आर होली, ब्लेमलेस एंड अबव रिप्रोच बिफोर हिम। लेकिन जब हम आईने में देखते हैं, जब हम अपने आप को देखते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तो सच में हमको क्या दिखता है? और जो वहां पे हमको दिखता है वो हम विश्वास कर रहे हैं कि ये हमारी पहचान है। अगर मुझे एक गुस्सैल आदमी दिखता है उस आईने में, तो मैंने उस गुस्से को अपना पहचान बना लिया है, जबकि वो झूठ है। क्योंकि एक वचन कहता है, लेट गॉड बी ट्रू एंड एवरी मैन अ लायर। परमेश्वर अकेला सच्चा हो और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। परमेश्वर कहता है कि मनोज पवित्र है, निष्कलंक है, निर्दोष है। आप सबके बारे में परमेश्वर ये कहता है। लेकिन जब हम आईने में देख रहे हैं, हमारे अंदर से कोई आवाज़ आ रही है और वो हमको कह रही है कि तू पापी है, देख तूने क्या किया था, देख तेरी कैसी सोच थी, वो उसको प्रमोशन मिला तो तेरे को दुखाना, तेरे को जलाना। हमारा मन ऐसा बात करता है। किसी और का मन बात करता है ऐसे अपने आप से कभी?
किसी का नहीं, जिसने हाथ नहीं उठाया मैं प्रेयर करवाऊंगा आपसे। थैंक यू जीसस। इस मन को, है ना, इस विवेक को ट्रेन करने की जरूरत है, क्योंकि ये सत्य नहीं बताता है, लेकिन कितना कितना रियल लगता है ना वो। कभी हुआ ऐसे आपने किसी को कुछ बोल दिया होगा और एकदम से ऐसे बहुत ज़्यादा आपको बुरा फील हुआ है कि अरे यार क्या क्या किया मैंने, और उसके बाद में आपको खाने का मन नहीं कर रहा है, पीने का मन नहीं कर रहा है ना। कितना गहराई से वो चीज़ हमको इफेक्ट करता है, क्योंकि उसको हम सच्चाई मानते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको किस तरह से देखता है ये हम नहीं जानते। इसीलिए हम बहुत सारे लोग अपने आप को भी पसंद नहीं करते, है ना। मैं ऐसा सोचता था कि अगर मेरे जैसा एक और क्लोन होता तो मैं उसको नहीं पसंद करता। मेरा डुप्लीकेट अगर होता तो मैं उससे दोस्ती नहीं करता। हमारा मन हमको दोष लगाता है। वाओ। यूहन्ना के 3 में हम जाएंगे। पहला यूहन्ना 1 John 3, पहला यूहन्ना का 3 19 में हम पढ़ेंगे। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उस विषय में हम उसके सामने अपने मन को आश्वस्त कर सकेंगे। आगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने साहस होता है। ठीक है, हिंदी ने बहुत ज़्यादा शॉर्टकट किया है। मैं इंग्लिश में पढ़ के फिर समझाता हूँ उसको। 19 में लिखा है, एंड बाय दिस वी नो दैट वी आर ऑफ द ट्रुथ एंड शेल अश्योर आवर हार्ट्स बिफोर हिम। 19 में लिखा है कि हम जानते हैं हम सच्चाई के हैं। कितने लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? तो आप जानते हो कि आपका नया जन्म हुआ, आप सच्चाई के हो, है ना। हम ये जानते हैं, लेकिन आगे ये वचन कहता है कि एंड वी शैल अश्योर आवर हार्ट्स बिफोर हिम। भले ही हम जानते हैं कि मैं सच्चाई का हूँ, हमको अपने दिल को सिखाना भी है। ये दूसरा टॉपिक है, इस पे हम ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे। आगे लिखा है, फॉर इफ आवर हार्ट कंडेम्स अस, गॉड इज ग्रेटर देन आवर हार्ट एंड नोज ऑल थिंग। ये वचन कह रहा है कि अगर आप आईने में देख रहे हो और आपका दिल आपको दोष दे रहा है, तो परमेश्वर आपसे दिल से बड़ा है और वो सब चीज़ें जानता है। ये एक अजीब कंपैरिजन नहीं लग रहा आपको कि आपके दिल को परमेश्वर से तुलना की जा रही है ना। हमने बाइबल में देखा है कि पैसे की और परमेश्वर की तुलना की है। यीशु बोलते हैं कि तुम पैसे और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, है ना, उन दोनों की तुलना की है। लेकिन ये वचन में हमारे दिल की और परमेश्वर की तुलना हो रही है कि हमारे दिल से बड़ा परमेश्वर है। इसका मतलब ये जो दिल है हमारा, जो हमको दोष लगाता है, उसमें इतना सामर्थ है हम पर कंट्रोल करने का। कितने लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को कि अगर आपका ये दिल जब आपको बोलता है कि तू दोषी है, चाहे दुनिया वाले कुछ भी बोले आपको, उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपको, है ना। जो लोग आत्महत्या करते, जो लोग सुसाइड करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनके दिल ने उनको कन्विंस कर दिया है कि तेरे साथ धोखा हुआ है, तेरा कोई फ्यूचर नहीं है, तेरे लिए कोई भविष्य नहीं है, तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, कोई तुझसे प्यार नहीं करता है। ये सब झूठी बातें उसके दिल ने उसको कंफर्म कर दिया है ना। उसके मन ने उसको दोष लगाया, उसको बोला कि यही तेरी सच्चाई है। और उसमें इतना सामर्थ्य है, उस मन में इतना सामर्थ्य है कि वो इंसान सच में उसको मान के अपनी जान ले लेता है। ये वचन कह रहा है कि यदि हमारा दिल हमको दोष दे रहा है तो परमेश्वर हमारे दिल से बड़ा है और वो सब चीज़ों को जानता है। ही नोज ऑल थिंग्स, जो हमारे दिल को नहीं जो हमारे दिल को चीज़ें पता नहीं है। क्या है वो चीज़ें? जो एक वचन हमने अभी पढ़ा था, हम परमेश्वर के सामने निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र है। परमेश्वर जब मुझे देखता है, आपको देखता है, तो वो हमारी गलतियों को नहीं गिनता है। लेकिन कितने लोगों की प्रार्थना ऐसी शुरू होती है कि प्रभु, जो भी जाने अनजाने में पाप हो गए होंगे मुझे माफ़ कर। पहला 5 मिनट हमारा पश्चाताप में जाता है। 2 ही लोग हैं, 2 ही सच्चे लोग हैं।
बाकी लोगों से झूठ की आत्मा को भगाना पड़ेगा। बहुत बार विश्वासियों की प्रार्थना ऐसी होती है ना, पहले हम जाते हैं तो पहले सबसे पहले टॉप पे जो होता है हमारी गलतियां होती है। हमको लगता है इसको पहले साइड कर लेते, फिर कनेक्शन बनेगा, तब हम बात कर पाएंगे। यानी जब भी हम परमेश्वर के सामने जा रहे हैं, हम उस दोष की भावना से जा रहे हैं। हम अपने आप को ऐसा देख रहे हैं कि मैं टूटा हूँ, बिखरा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं बहुत गलत इंसान हूँ। और अब किसी तरह से अगर मैं दया है ना परमेश्वर के सामने आया हूँ, परमेश्वर अगर दया करके मुझसे बात करेगा तो शायद मुझे वो स्वीकार सकता है। हम इस मनसा से परमेश्वर के सामने आते हैं और हर बार पश्चाताप करके हमको लगता है तब जाके हम परमेश्वर से बात कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मन हमको दोष दे रहा है कॉन्स्टेंटली। ये बोलता है कि तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है। और जो लोग दिखाते हैं ना, अभी नौकरी अगर आप कर रहे हो तो हम देखते हैं कि कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, और वो एक्चुअल में अगर आप समझोगे उनको करीब से, अगर उस इंसान को आप जानोगे तो उनमें बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ है। अपने बारे में उनकी सोच भी अच्छी नहीं है, लेकिन उसको छुपाने के लिए वो एक कॉन्फिडेंस वाला मुखौटा पहन के लोगों के सामने आते हैं। बहुत बार मैंने ऐसे टीम्स में देखा है। हमारे में जब किसी एक टीम से गलती हो जाती है तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आके लड़ते हैं कि नहीं, सॉफ्टवेयर हमारा सही है, तुमने गलत टेस्ट किया, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। और अगर हम सही भी हो तो हमको लगता है कि अरे शायद सही बोल रहा है, और फिर बाद में पता चलता है कि हम सही थे। बट ये एक दुनिया का एक नॉर्मल चीज़ हो गई है कि हर एक इंसान एक नकली चेहरे को लेकर जाकर लोगों से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो मन हमारा दोष दे रहा है, इसको कैसे काबू में लाना है किसी को नहीं पता है। हम चाहते हैं, है ना, मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं हम सब चाहते हैं परमेश्वर को और करीब से जानने। हमारा दिल उसके लिए है। कोई ऐसा है जो आरएसएस का बंदा बैठा है इधर कि नहीं मैं बैठ के इनको फंसाऊंगा? सब लोग जेन्युइनली आए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए आए हैं। आरएसएस का नाम लिया, कोई हाथ नहीं उठा रहे। हम सब परमेश्वर को जानना चाहते हैं ना, दिल से उसको खोजना चाहते हैं, उससे प्यार करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन यहाँ पर भी आने के समय में हमारे मन में रिजेक्शन वाले भावना है कि पता नहीं परमेश्वर मुझसे खुश होगा या नहीं। ये पूरा हफ्ता मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, प्रभु माफ कर दे, अगले हफ्ते से पक्का, है ना। हम ऐसे नेगोशिएशन करके परमेश्वर के सामने आते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं देख पा रहे कि परमेश्वर हमें किस नजर से देख रहा है। सिर्फ अगर हम देखने लग जाएं कि क्या वो रूप कौन सा है हमारा परमेश्वर की निगाहों में, परमेश्वर की नजरों में, और वो हमने नहीं बनाया है, क्योंकि उसका वो सच्चा जो स्वरूप है जिसमें उसने हमको बनाया है वो हम नहीं जानते हैं। इसलिए हम हर कोशिश कर रहे हैं अच्छा बनने की, ताकि हम और उसको खुश कर पाए। अपने दिल से ना इस समय पूछिए, क्या आपके जीवन से परमेश्वर खुश है? कितने लोग कॉन्फिडेंस के साथ चिल्ला के बोल सकते हैं हाँ? नहीं। थैंक यू जीसस। इब्रानियों में हम जाएंगे एक वचन देखकर। थैंक यू लॉर्ड। जीसस। इब्रानियों के 11:6 को हम पढ़ेंगे। But without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. ये वचन कहता है कि बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना असंभव है। कितने लोगों ने यीशु मसीह में विश्वास किया है? तो इस वचन के अनुसार यदि आपने विश्वास किया है तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। एक ही पास्टर ने आमीन बोला सिर्फ।
थैंक यू जीसस। ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने एकदम मास्टरी कर ली है इसमें। अगर किसी को भी आप पूछोगे जो मुझे जानते हैं, तो सबसे ज़्यादा ये कॉन्शियंस वाला स्ट्रगल मेरा हुआ है और प्रभु मुझे इसमें सिखा रहा है। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि उसके अनुग्रह के द्वारा जब हम एक साथ आ रहे हैं तो एक दूसरे को हम तेज़ कर पा रहे हैं। प्रोवर्ब्स में वचन लिखा है, आयन शार्पन्स आयन। जब हम यहाँ पर मिल रहे हैं, सहभागिता कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। कल रात को हम लोग रात भर सोए नहीं, हम लोग बैठ के ये परमेश्वर के प्यार पे, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, 3-4 भाई हम। यहाँ पर जब हम आ रहे हैं, मैं विश्वास कर रहा हूँ पवित्र आत्मा सिर्फ मेरे द्वारा आपसे बात नहीं कर रहा है, वो मुझे भी सिखा रहा है। थैंक यू जीसस। ये वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर प्रसन्न होता है, और जितनों ने अपने विश्वास को यीशु मसीह में लगाया है, अब हमको परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा देखता है। एक और वचन देखेंगे हम, पहला यूहन्ना का 4:17। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन साहस हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। न्याय के दिन साहस किसी ने सुना? न्याय के दिन, जजमेंट वाले डे पे, तुम्हारे रिजल्ट पर, एग्जाम का जो रिजल्ट आने वाला है, उस दिन पे हमको धाड़स होगा, ऐसा वचन कह रहा है। फिर से पढ़िए। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन साहस हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। जैसा वो है, ये वो कौन है? यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं ना। जैसा यीशु मसीह है इस समय में, वैसे ही कौन है? कितने लोग बोल सकते हैं हम हैं ऐसे? सच में ये वचन कह रहा है कि इस समय जैसा यीशु मसीह है वैसे ही आप और मैं है इस संसार में। आगे जाके होंगे ऐसा नहीं है ना, स्वर्ग में जाके होंगे। हमको लगता है कि हम एक दिन एकदम परफेक्ट बन जाएंगे स्वर्ग में जाने के बाद में। ये वचन कह रहा है कि इस संसार में, इस समय में जैसा यीशु मसीह है वैसे ही आप और मैं हैं। परमेश्वर जब आपको और मुझे देखता है तो वो हमको इस नज़र से देखता है। जैसा यीशु मसीह परिपूर्ण है कि उसने अपने शुरुआत से लेकर अंत तक एक भी गुनाह नहीं किया। जिस दिन हमने यीशु मसीह में विश्वास किया, उसने हमारे सारे गुनाहों को खत्म कर दिया। इसीलिए परमेश्वर हमसे, एक पापी मनुष्य से बात कर सकता है, क्योंकि उसने उस पाप को क्रूस पर दोषी ठहराया। आओ, मैं जब छोटा था हम लोगों को रैप्चर से बहुत डर लगता, मुझे बहुत डर लगता था रैप्चर से। कितने लोगों को पता है रैप्चर क्या होगा? कि यीशु मसीह आएंगे, अपने सारे लोगों को लेकर जाएंगे, और उसमें हमारे प्रीचिंग ऐसी होती थी कि 2 लोग सोए होंगे, उसमें से एक उठा लिया जाएगा। मेरे को पक्का गारंटी था, मैं था वो जो छोड़ दिया जाएगा वो मैं था, ये पक्का मेरे को गारंटी था। एंड आई एम श्योर जितने लोग सुन रहे थे उस समय में, उन सबको कहीं ना कहीं डर था कि ये मैं तो नहीं हूँ। 2 होंगे, एक छोड़ दिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा। हाँ, हमारे जो शुरुआत के मसीह दिन थे ना, जब हम कितने साल हो गए? 26। हाँ, ऑलमोस्ट 26 साल हो रहे हैं परमेश्वर में आके। बट शुरुआत के जो 15 साल थे हमारे पूरे परिवार के, तो वो इसी चीज़ में जाते थे कि परमेश्वर आज रात को अगर तू आए, हमको हमेशा हर रात को परमेश्वर को विदाउट फेल ये याद दिलाना था कि गलती से अगर भूल गया तो फिर प्रभु बोलेगा एप्लीकेशन तूने दिया नहीं उस रात का, तेरा एक्सपायर हो गया था पिछली रात वाला। तो हर रात को सोने के पहले मुझे याद है, हम तीनों, मम्मी डैडी मैं, हम लोग प्रेयर करते थे कि प्रभु अगर आज रात को तू आए तो हमको छोड़ के मत जाना, हमको भूल मत जाना। किसी और ने प्रेयर किया ऐसा कभी? सुनीता आंटी ने किया था। हम सब साथ में ही सीखे थे ये प्रेयर कि प्रभु आज रात को अगर तू आए तो हमको छोड़ के मत जाना। यानी शुरुआत के हमारे जो 15 साल थे करीब परमेश्वर में, वो एक ऐसी चीज़ को प्राप्त करने में चले गए जो परमेश्वर ने हमको पहले ही दे दिया था।
अभी हंसी आती है लेकिन तभी हंसी नहीं आ रही थी। मुझे याद है बहुत बार ये टीचिंग हमको ऐसे नाइट प्रेयर्स वगैरह होते थे, रात रात भर प्रार्थना होती थी। और एक फैमिली थे आउंद में कहीं पे रहते थे, बड़गुजर फैमिली, आंटी को भी पता होगा। तो उनके घर में प्रेयर चल रही थी और मैं छोटा था बहुत, तो सब लोग प्रेयर कर रहे थे और मैं घुटने पे बैठ के प्रेयर कर रहा था। बट अनॉइंटिंग आया, क्या हुआ पता नहीं, मैं गहरी नींद में सो गया था। अनॉइंटिंग नहीं आया था, मैं गहरी नींद में सो गया था। तो जब मैं सोया, लास्ट सीन मुझे ये याद था कि आजू बाजू में सब लोग बैठ के अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे, आवाज़ हो रही है। और जैसे ही मैंने नींद खुली, मेरी आँख खोला तो सब चले गए थे। और चर्च का वो सीन मुझे याद आया कि सब बैठे होंगे, ऐसे पलक झपकने में सब लोग गायब हो जाएंगे। लिटरली मैं कितना 6-7 साल का रहूँगा तभी, ऐसा दहशत आया मेरे को। मैं उठ के भागा और ये जो अच्छे लोग थे जिनके हम घर में थे, उन्होंने सोचा ये बच्चा है, कहीं कोई आ नहीं जाए, तो बाहर से वो लोग लॉक करके गए थे मेरे को। और घर में जो 15-20 लोग थे वो लोग सब कहीं ग्राउंड में गए हैं प्रार्थना करने के लिए। हम लोग चलो उधर प्रार्थना करते। मैं उठा और मैं जाके देखा कि घर से लॉक कर दिया। और मैं डर गया कि अभी इन लोगों ने मेरे को छोड़ा, एंटी क्राइस्ट आएगा इधर। ये मैं बना नहीं रहा हूँ, ये कहानियाँ मैं बना नहीं रहा हूँ, ये दहशत लिटरली था मेरे में। और मैं रो के चिल्ला रहा था उस दरवाजे को खींच के कि मेरे को बचा लो, कोई निकालो इधर से, कि एंटी क्राइस्ट आने के पहले मुझे ले लो, इनका रैप्चर हो गया, अभी मैं कहाँ भाग के जाऊँ। फिर थोड़ी देर से पड़ोसी ने मेरी चीखें सुनी और उनको बुला के लाए, उन लोगों ने तभी दरवाज़ा खोला। बट ये थोड़ा मजाक वाला भी है, बट ये सच में हुआ था मेरे साथ। बट आप सोचिए, बहुत सारे लोग ऐसी दहशत में जीते हैं, परमेश्वर के सामने वो लोग दहशत में आते हैं। जब वो प्रार्थना करने बैठते हैं, उनको लगता है कि प्रभु माफ़ कर ले, आग बेच के मुझे जला मत देना, इतना बुरा पापी हूँ मैं। एक वचन हम देखेंगे। आप लोग अगर नोट्स लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं अलग अलग डायरेक्शन से वचन में डालता जा रहा हूँ। इब्रानियों में हम जाएंगे, इब्रानियों के 10 में। थैंक यू जीसस। 11 से आगे। और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। ये किस बारे में बात कर रहा है? पुराने नियम में परमेश्वर ने जानवरों का बलि के बारे में बताया था, है ना। जब लोग पाप करते थे साल भर, तो साल भर का एक साथ वो लोग जानवरों को लाते थे और उनका बलि होता था, उनका लहू बहता था। और वो एक चिन्ह था कि किसी दिन यीशु मसीह आएगा, अपने लहू को बहा के तुम्हारे पापों को निकाल देगा। लेकिन वो जो सैक्रिफाइस को क्या बोलते हैं हिंदी में, बलिदान जो था, वो इनको हर साल बार बार करना पड़ता था। कि इस साल अगर इन्होंने एक बकरी को लेकर गए, नहीं बकरी के इतना छोटा पाप नहीं होगा, बड़े भैंस गाय जिनको भी लेके जाते थे, वो उनका अगर वध इस साल किया ना, पूरे साल का पापों का जो कोटा था वो ढक जाता था। वो एक चिन्ह था जिससे कि ये बलिदान के द्वारा तुम्हारे पाप ढक जा रहे हैं। और ये लेकिन उनको हर साल करना पड़ता था, हर साल। आप सोचिए, उनके जो फेस्टिवल्स होते थे उस समय में उनको जाके अपने परिवार के साथ इन जानवरों को लेकर जाना पड़ता था, इनका वध करके इनके पाप का क्षमा एक तरह से बोल सकते हैं, या पाप का ढकना हो सकता है। बट ये करने में हर साल क्या होता था कि उनको एक कॉन्शियसनेस होती थी। कॉन्शियसनेस को क्या बोलते हैं? नहीं, अवेयरनेस, जागरूकता। उनके पाप के बारे में उनको जागरूकता होती थी। मतलब हर साल वो आ रहे हैं, उनको उनके सामने कंटिन्यूली कि मैं पापी हूँ, इसीलिए मुझे ये लाना पड़ रहा है, मैं पापी हूँ इसीलिए मुझे ये लाना पड़ रहा है, पूरा साल भर मैंने पाप किया इसीलिए मुझे ये बलिदान देना पड़ रहा है। यानी इन बलिदानों के द्वारा उनके मन में, उनके विवेक में से पाप कभी निकल नहीं रहा था। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हर साल उनको लाकर बार बार ये अर्पण करना पड़ता था, और ये अर्पण दिखा रहा था कि ये इसलिए करना पड़ रहा है, इस मासूम जानवर की हत्या इसलिए हो रही है क्योंकि तूने पाप किया है ना। और तेरे मरने की जगह पर ये मर रहा है ताकि ये एक चिन्ह है आगे जो होने वाला है उसके लिए। लेकिन हर साल जब वो करते थे तो पाप का जो विवेक है, जो कॉन्शियंस है, जो पाप का जो दोष का भावना है, जो उनको बोलता था कि तू पापी है, तू पापी है, वो निकलता नहीं था।
क्योंकि उनके पाप सिर्फ ढक रहे थे, लेकिन हर साल इस बार के पाप ढक गए, अगले साल मुझे फिर से जाके बलिदान देना है, तब मेरे पाप का जो याद है वो फिर से ताज़ा हो रहा है हर साल। पढ़िए फिर से उसको 11 से। और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। ये बलिदान पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते थे। आप समझ रहे हो, जो लोग आ रहे हैं अपने पाप करने के बाद में उस बलिदान को लेकर, उनके पाप उनसे दूर नहीं हो रहे थे, सिर्फ पिछले साल के पाप ढक जा रहे थे, और फिर अगले साल वो पाप करते और फिर से आते और उनके पाप ढक रहे। उनको पाप से छुटकारा नहीं मिल रहा था, यानी उस पाप के स्वभाव को लेकर वो चल रहे थे साल, हर साल है ना, साल के बाद साल वो उस पाप के स्वभाव को लेकर चल रहे थे। आगे, पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। बट दिस मैन, यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, यह व्यक्ति है ना, दिस मैन आफ्टर ही हैड ऑफर्ड वन सैक्रिफाइस, यीशु मसीह ने आके सिर्फ एक बलिदान दिया। आमेन। दिस मैन आफ्टर ही हैड ऑफर्ड वन सैक्रिफाइस फॉर सिंस फॉरएवर, एक बलिदान सब पापों के लिए, हमेशा के लिए। आमेन। But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. From that time, waiting till his enemies are made his footstool. यीशु मसीह ने अपने लहू का बलिदान एक ही बार दिया सबके पापों के लिए, और वो एक बलिदान ने हमेशा के लिए उन पापों को मिटा दिया। इसीलिए परमेश्वर आपको और मुझे देखकर बोल सकता है कि तू पवित्र है, तू निर्दोष है, तू निष्कलंक है, तू यीशु मसीह जैसा है, जैसा यीशु है वैसा तू इस धरती पे है। इसीलिए परमेश्वर हमको देख के बोल सकता है, क्योंकि उसका जो लहू था वो किसी बछड़े का लहू नहीं था, वो उस पवित्र खुदा का लहू था। उसके एक बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए उसने हमको परिपूर्ण किया है। आगे, और उसी समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। For by one offering he perfected forever. एक बलिदान के द्वारा उसने आपको मुझे हमेशा के लिए परिपूर्ण कर दिया है। तो यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद में परिपूर्ण नहीं हुए हो, तो आपके लिए कोई आशा नहीं है, क्योंकि वो फिर से मरने वाला नहीं है। उस एक बलिदान के द्वारा यीशु मसीह ने हर एक इंसान को परिपूर्ण कर दिया है, जैसे परमेश्वर परिपूर्ण है। लेकिन ये परिपूर्णता हमको अपने जीवन में नहीं दिखती है ना, उस पर हम बाद में आएंगे। आगे फिर से उस वर्स को पढ़ के आगे, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा, एक बलिदान के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं यस सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। आमेन। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। आमेन। फिर वह यह भी कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं उनके पापों को, उनके अधर्म के कामों को कभी याद नहीं करूंगा। लेकिन हमको लगता है कि हमारा कर्तव्य है कि हर बार जब हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने पापों का लिस्ट हमको परमेश्वर के सामने लेके जाना है, उसको याद दिलाना है। ये वचन कह रहा है कि वो हमारे पापों का स्मरण कभी नहीं करता। आगे, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। आमेन। क्यों आज हम जानवरों की बलि क्यों नहीं करते हमारे पापों के माफी के लिए? क्योंकि पाप को क्षमा करने के लिए जो कार्य करना था यीशु मसीह ने एक बलिदान के द्वारा वो कर दिया। अगर यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा ये काम पूरा नहीं होता तो आज आपको मुझे हर साल बैल बकरी को लेकर जाकर
वध करना पड़ता था अपने पापों को ढकने के लिए, लेकिन उस एक बलिदान ने हमको सिर्फ माफ़ नहीं किया, हमारे पापों को उसने मिटा दिया। आप एक तुलना देखिए कि पुराने नियम के जो अर्पण होते थे उसमें लिखा है कि उनके द्वारा पाप नहीं दूर होते थे इनसे, है ना, उनके पाप उनके साथ ही थे, लेकिन यीशु मसीह के एक बलिदान के द्वारा हम पापी से धर्मी बन गए। दूसरा कोरिन्थियों का 5:21 रेखा शे तेरे तिदरे शेखाला राधा दिशे जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह जिसको पाप क्या है पता ही नहीं था, वो आपके और मेरे लिए पाप बन गया। पापी नहीं बना वो। कितने लोगों के बाइबल में पाप लिखा है? आप समझ रहे हो? परमेश्वर का पवित्र पुत्र जिसने कोई पाप नहीं किया था, हमारे पाप इतने गहरे थे, इतने गहरे थे, हमारे पाप ने हमको इतनी बुरी तरह से सड़ा के रखा था कि यीशु मसीह को जब कोड़े मारे गए ना, उसको कोड़े हड्डियों तक उनको मारने पड़े थे। जो कोड़े वो मारते थे उसमें से मांस लगकर वो उखड़ जाता था। यानी अगर यीशु मसीह के पीठ को आप देखते उस समय तो उसका सारा मांस फट के सिर्फ आपको हड्डियां नजर आ रही होंगी, वहाँ पे उसकी रिब्स, बरगड़ी जिसको बोलते हैं, ये दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि पाप ने हमको इतनी गहराई तक घाव दिया था। ये जो पाप का दोष है ना, दोष जो हमारा मन हमको लगाता है, ये पाप का एक वरदान है हमको। कितने लोग समझ रहे हैं? आदम पाप करने से पहले दोष क्या है उसको पता नहीं था। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उसको दोष क्या है, उसको सेल्फ हेट्रेड क्या है, रिजेक्शन क्या है, अकेलापन क्या है, ये पता नहीं था। ये सारी चीज़ें पाप की देन थी। जब उसने पाप किया, ये सारी चीज़ें आकर आज वो हमारे जीवन का इतना अहम हिस्सा बन गई है कि आईने में भी जब हम देखते अपने आप को, हमको कोई अच्छा ही नहीं दिखती अपने में। ये पाप की देन थी, है ना, पाप का ये तोहफा था, क्योंकि पाप ने इतनी बुरी तरह से, इतनी गहरी तरह से हमको सड़ा के रखा था। यीशु मसीह को उस पाप को निकालने के लिए खुद पाप बनना पड़ा। वो वचन यही कह रहा है, फिर से पढ़ो उसको। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम सोच भी नहीं सकते ना, पवित्र परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को अपने शब्दों से बोलकर बनाया, उसने आपके और मेरे ऊपर इतना प्यार किया कि आपको और मुझे बचाने के लिए वो इस धरती पे आया एक इंसान बन के। और वही नहीं, उसने लोगों की जिल्लत सही, और आखिर में वो जो पाप क्या है जानता ही नहीं था, वो आपके और मेरे लिए पाप बन गया, है ना। यीशु मसीह क्रूस पे जाने के एक दिन पहले, एक रात पहले प्रार्थना कर रहा होता है, तो बाइबल में लिखा है कि उसका पसीना लहू बन के टपकता है। इतना स्ट्रेस में यीशु मसीह थे, और यीशु बोलते हैं कि हे पिता, अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे दूर कर। उसको सिर्फ उस दर्द का डर नहीं था, वो स्वयं पाप बनने वाला था, जिसको पाप क्या है पता ही नहीं था। मैं नहीं जानता कि हम कभी इसको समझ पाएंगे पूरी गहराई से या नहीं, बट मैं विश्वास कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा और डेप्थ में हमको लेके जाते रहेगा इस चीज के। वो परमेश्वर जिसने मुर्दों को जिलाया, ये पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है आपको पता है? अभी भी यूनिवर्स जो है वो एक्सपांड हो रहा है। परमेश्वर ने शुरुआत में सिर्फ ये बोला था कि रोशनी हो, लाइट भी। उसके बाद में परमेश्वर के शब्द इस सृष्टि का निर्माण करते चले गए। साइंस में अगर आप देखोगे तो इतने सारे गैलेक्सीज है, उसमें से हमारा जो ब्रह्मांड है वो एक छोटा सा तिनका है। उसके अलावा बहुत बड़ी दुनिया है, और वो सब उसने अपने शब्दों से बोलकर बनाई है। और वो परमेश्वर ने आपके और मेरे ऊपर इतना प्यार किया कि उसने इस धरती पे आकर पाप वो बन गया। वाओ!
उस पाप को उसने अपने शरीर पे लिया ना, उस पाप का जो भी प्रतिफल था, बीमारी, गरीबी, श्राप, दर्द, ये जो भी था यीशु मसीह ने अपने आप पर ले लिया उस क्रूस पर। क्यों? ताकि आप और मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन सके। कोशिश करके नहीं, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। यह हमारी पहचान है। परमेश्वर हमको जब देखता है वो इस तरह से देखता है। लेकिन आज भी हम स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि ये जो पाप का देन था ना, उसको हमने बहुत नज़दीक ऐसे पकड़ के रखा है। जो दोष की भावना हम में दी थी उसने, पाप की वजह से एक ट्रेनिंग हुई थी ना, इतने साल हम इस दुनिया में थे, हमारी ट्रेनिंग हुई थी कि तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, है ना, अच्छा बुरा। इसका ज्ञान इतना गहराई से हमारे अंदर चला गया कि एक दोष बन गया। इसीलिए ये वो वचन जिसमें कहा है कि बड़े से लेके छोटे तक, सबसे पहले बड़े लोग निकले, है ना, उनके दिलों ने उनको कन्विक्ट किया और वो लोग चले गए। उसके बाद में छोटे 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 करके, जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारा कॉन्शियंस जो है, हमारा विवेक जो है, वो और ज़्यादा एक्टिव होता जा रहा है, वो और ज़्यादा दोष लगाता जा रहा है हमारे ऊपर। लेकिन इसको बदलना है। थैंक यू जीसस। इसको कैसे बदल सकते हैं हम? क्योंकि दोष की भावनाओं से हर रोज हमारा आमना सामना होता है ना, कोई ना कोई ख्याल आता है। उस समय हमको परमेश्वर को सत्य मानना है ना, उस समय हमको निश्चय करना है, लेट गॉड बी ट्रू एंड एवरी मैन अ लायर। प्रभु, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तू मुझसे खुश नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू मुझसे प्रसन्न नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे देखकर घिन आ रही होगी, लेकिन तेरा वचन कहता है कि तेरी नज़रों में मैं पवित्र हूँ, तेरी नज़रों में मैं निष्कलंक हूँ, तेरी नज़रों में मैं निर्दोष हूँ, तेरी नज़रों में मैं तेरी धार्मिकता हूँ, तेरी नज़रों में मैं ऐसा हूँ जैसे मैंने आज तक कभी पाप नहीं किया, तेरी नज़रों में मैं यीशु मसीह जैसा हूँ। ये हमको बोलकर अपने आप को परमेश्वर से जोड़ना है उस समय में। लेकिन हमारी आदत क्या है कि इस झूठ पे हम विश्वास करके उसके बाद में हम कोशिश करते हैं कि मैं अभी अपने बल से कुछ तो करूँगा ताकि मैं और ज़्यादा प्रार्थना कर पाऊँ, और ज़्यादा बाइबल पढ़ पाऊँ, ताकि शायद प्रभु मुझसे खुश होगा। हम सबको बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर के साथ आना है, कलीसिया में आते रहना है, लेकिन इसलिए नहीं कि परमेश्वर इससे खुश हो। हमको ये जानकर यहाँ पर आना है कि पिता ने मुझे स्वीकारा है, आज मैं जा रहा हूँ उसकी स्तुति करने के लिए, आज मैं जा रहा हूँ उसके लोगों से मिलने के लिए, मेरे भाइयों मेरे बहनों से मिलने के लिए। ये एक बड़ा परिवार है, ये पार्टी है जहाँ पे पिता आकर मुझसे बात करने वाला है। इस ढाढ़स के साथ हमको जाना है ना। शैतान ने लोगों को उलझा के रखा है अपने ही जिंदगी में। आज हमको परमेश्वर के कार्य करने के लिए अगर ढाढ़स नहीं है तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे, हम सेल्फ कॉन्शियस बन गए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर आपको किसी ने बोल दिया कि भाई आ जाओ प्रीच करो, ऐसे अचानक से हमारा ऐसा लगता है दिल रुक गया एक सेकंड के लिए, ये क्या बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने आप को वैसा नहीं देखते। हम लोग को लगता है कि बहुत कुछ करने के बाद में उस जगह पर, उस स्थान में हम कभी पहुंचेंगे। थैंक यू जीसस। एक और वचन हम देखेंगे, यूहन्ना का 15। कल रात भर हम इसी पे बात कर रहे थे। मिशू भाई ने क्वेश्चन पूछ के सो गए 2 बजे। उसके बाद हम लोग रात भर बैठ के इस पे स्टडी कर रहे थे। थैंक यू जीसस। 15:1 से पढ़ो। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले।
तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। Amen. Amen. मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। थैंक यू जीसस। ये वचन कहता है, यीशु मसीह बोल रहे हैं, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आत्मा में हम अपने आप को देख पाए ना एक सेकंड के लिए ऐसा लगेगा चेयर पे ऐसे डालियां बैठी है जो पूरा जोर लगा रही है, पूरे ताकत से फल लाने की कोशिश कर रही है, तने से दूर। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? है ना, हम सब ये करते हैं। उससे अलग होकर हम उसको खोजने की कोशिश करते हैं कि प्रभु मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने आना चाहिए, मैंने करना चाहिए। ये सही है, हमको करना है, लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। हमको ये गलतफहमी है कि हम कुछ चीज़ें उसके बिना कर सकते हैं। कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेंगी ना, सब थोड़ी प्रभु करके देगा। लेकिन यीशु मसीह बोल रहे हैं मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब परमेश्वर को खोजना भी हम उसके बिना नहीं कर सकते। इसीलिए पवित्र आत्मा हमको दिया गया है। पवित्र आत्मा क्या करता है? ही सर्चेस द डीपर थिंग्स ऑफ गॉड, डीपेस्ट थिंग्स ऑफ गॉड। परमेश्वर की गहरी बातों को वो खोजता है और उसके द्वारा हम में ये भूख होती है कि हम परमेश्वर को और जान पाए। लेकिन जब हम दोष की भावना को सामने रख के चलते हैं ना, हमारे पास धाड़स नहीं होता है परमेश्वर के सामने आने का। तो हम कैसे उससे अनुग्रह मांगे कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे, तुझे और खोजना चाहता हूं मैं, और तुझ में बढ़ना चाहता हूं। जब हमको ये लग रहा है कि परमेश्वर हमसे नाखुश है, तो कैसे हम धाड़स से मांग पाएंगे उसको? उस वचन में हम फिर से जाएंगे, पहला यूहन्ना का 3। John 3 20 पढ़िए, 20 और 21। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है Yes. और सब कुछ जानता है। Amen. हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने साहस होता है। यदि हमारा मन हमको दोष नहीं दे रहा है तो परमेश्वर के सामने हमको साहस होता है। इसका मतलब अगर मन मेरा दोष दे रहा है तो परमेश्वर के सामने आने में मुझे धाड़स नहीं होगी, और मुझे लगेगा परमेश्वर उस लेवल पे है तो मुझे पहले प्रार्थना का सीढ़ी बनाना पड़ेगा, पश्चाताप बीच में ऐड करना पड़ेगा या ऊपर के लेयर पे, और फिर उसके ऊपर थोड़ा बाइबल वर्सेस मेमोराइज करके फास्टिंग, फिर शायद मैं परमेश्वर के लेवल पे आके उससे माफ़ी मांग सकता हूँ। क्योंकि मेरा दिल मुझे दोष दे रहा है, मेरा दिल मुझे बोल रहा है कि तू परमेश्वर को नाखुश करता है। लेकिन उस समय में जब आपका दिल आपसे बात कर रहा है, आपको परमेश्वर के वचन को लेकर बोलना है, लेट गॉड बी ट्रू एंड एवरी मैन अ लायर। परमेश्वर अकेला सच्चा ठहरे और हर एक मनुष्य झूठा, इंक्लूडिंग मी, मेरा दिल भी झूठा ठहरे। और उस समय में आपको अपनी कोशिश से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। आपको बोलना है प्रभु को कि प्रभु मुझे महसूस ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं अपने फीलिंग्स को साइड में रख के तेरे वचन पे विश्वास करता हूँ कि तूने मुझे स्वीकारा है। आई एम एक्सेप्टेड इन द बिलवड। मैं कभी नकारा नहीं जा सकता हूँ। मुझे अकेला महसूस हो रहा है, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, लेकिन क्योंकि तूने मुझे स्वीकारा है, तूने बोला है आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू। संसार के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। तेरी माँ तुझे भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मेरी योजनाएं तेरे लिए सिर्फ अच्छाई की है। For I know the plans that I have for you, thoughts of good and not of evil. मैं सिर्फ तेरी भलाई चाहता हूँ, और तेरी असली पहचान मैंने तुझे दी है। जो दुनिया तुझे बोल रही है इस पे ध्यान मत दे।
क्योंकि सिर्फ मैं तेरे सच्चाई को जानता हूं, और यदि तेरा दिल तुझे दोष दे रहा है, तेरे दिल से बड़ा मैं हूं। परमेश्वर ये कह रहा है, इफ योर हार्ट कंडेम्स यू, गॉड इज ग्रेटर देन योर हार्ट। परमेश्वर की सच्ची आवाज को हमने नहीं सुना है। बहुत बार लोगों को सपने में परमेश्वर आके डांटते हैं। प्रभु ने आके मेरे को बहुत गुस्से में बोला कि तूने ऑफरिंग नहीं दिया था, दे। बहुत गुस्से में बोला कि तूने वो सिस्टर को माफ नहीं किया, तू माफ कर। तब जाके मैंने माफ किया, क्योंकि हमने परमेश्वर का एक स्वरूप अपने लिए बना के रखा है। क्योंकि हमारा दिल हमको दोष दे रहा है कि तूने ऐसा किया है, इसलिए परमेश्वर तुझसे कभी खुश हो ही नहीं सकता, इसलिए परमेश्वर हमेशा तुझसे गुस्से में है। और वैसे ही हम परमेश्वर को देख रहे हैं और उससे करीब नहीं आ पा रहे। हमको सबसे पहले यह बदलना होगा जिस तरह से हम परमेश्वर को देख रहे हैं, और फिर यह समझना होगा कि वो हमको किस तरह से देखता है, और उसके बाद में मजाल है किसी की हमको परमेश्वर से अलग करके। पौलुस इसीलिए बोलता है, नथिंग कैन सेपरेट मी फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट। कोई भी चीज मुझे मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकती है। और हर एक चीज ने उसको मसीह के प्यार से अलग करने की कोशिश की थी। इतने बार मारा गया था, वो पत्थर मार के लोगों ने उसको ऑलमोस्ट मार डाला था। फिर विश्वासी आते हैं, उसको घेरते, और वो उठ के फिर से जाता है। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा एक शुरुआत कर रहा है हमारे अंदर, कि आज से जब भी दोष की भावना हमारे से बात करे, हम उसका जवाब देंगे परमेश्वर की सच्चाई के द्वारा। और मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान अगले 30 दिन के लिए जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है, अच्छी बुरी, आपका दिल आपको दोष दे रहा है, आपका दिल आपको थपथपा रहा है कि तूने अच्छा किया, जो भी आपके साथ हो रहा है, आपको परमेश्वर के प्यार को अपनाना है। अगर आपका परफॉर्मेंस खराब है ऑफिस में, आपका बॉस बोलता है कि तू बेकार है, तेरी नौकरी गई, उस समय में आपको परमेश्वर के पास जाके बोलना है, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे तेरे ज्ञान दिया है, मेरा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। संसार चाहे कुछ भी करे, मेरा जीवन का जो योजना तूने निश्चय किया है वो पूरा होके रहेगा। रिसेशन शायद दुनिया में आए, लेकिन मेरे घर में रिसेशन नहीं आएगा, है ना। जो भी अवसर आपको मिलता है दोष लेने का, उस अवसर को आप अगले 30 दिन तक बदलते रहिए, और उस समय पे परमेश्वर के प्यार को अपने लिए स्वीकार कीजिए। और मैं विश्वास कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा ये करने में आपको मदद करेगा, और उसके बाद परमेश्वर से जो हमारा संबंध है वो बहुत गहरा हो जाएगा। क्योंकि वो दोष अगर चला जाता है, वो भय अगर चला जाता है, तो परमेश्वर के लिए हमारे पास धाड़स आएगा। धाड़स से हम जा पाएंगे, विश्वास के साथ हम जा पाएंगे, ये जानकर कि मुझे स्वीकारा गया है, मुझे परमेश्वर ने स्वीकारा है, मुझे कभी नकार नहीं सकता है वो। थैंक यू जीसस। हम खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। जो भी वचन आपने आज सुना है, इसको लेकर अपने शब्दों में परमेश्वर से बातें करना शुरू कीजिए। अपने दिल को इस समय आश्वासन दीजिए प्रभु से बातें करके कि प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे पवित्र बनाया है। धन्यवाद कि तू मुझे निर्दोष ऐसा देखता है। हर एक इंसान अपने अपने शब्दों में बात करना शुरू कीजिए, मन में नहीं, मुंह से। लेट एवरीवन स्पीक। थैंक यू फादर। प्रभु धन्यवाद, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं। Jesus, we love you. You will never leave me nor forsake me, Lord. तू कभी मुझे दूर नहीं करेगा अपने आप से, चाहे हर एक इंसान मेरे खिलाफ आ जाए। तेरा प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं होगा प्रभु, क्योंकि जब मैं पापी ही था उस समय तूने मुझसे ऐसा गहरा प्यार किया, और उस प्यार ने मुझे बदल दिया है पिता। और जैसे मैं तेरी सच्चाई को देखता जा रहा हूं, तेरी सच्चाई मेरे जीवन में पूरी हो रही है, इसलिए धन्यवाद पिता।
that your truth is reigning in my life, that all lies are falling off. सारे झूठ खत्म हो रहे, सारे झूठ टूट कर बिखर रहे हैं. जो झूठ के दीवारें इतने सालों से मेरे मन में बनी हुई थी, तुझको लेकर जो धारणाएं मेरे मन में बनी हुई थी, खुद को लेकर जो धारणाएं मेरे मन में बनी हुई थी, जो लिमिटेशंस मैंने डाल के रखे थे, पिता पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि तू उन सब दीवारों को तोड़ रहा है इस वक्त. तेरे प्यार के एक फ्लड से तो सारे जो रिजेक्शंस है उसको तोड़ रहा है पिता. Holy Spirit, we thank you for pouring out your love in our hearts. पिता के प्यार को तूने हमारे दिलों में भरा, इसलिए धन्यवाद. देगा राशे ते दे दे रे गाला राशे दे रे बे. कोई भी चुप नहीं रहेगा, सब अपने शब्दों में परमेश्वर से बातें कीजिए, उसकी स्तुति कीजिए. उसने आपको कौन बनाया है इस चीज़ की घोषणा कीजिए. हर एक जन अपने जीवन के लिए इस समय प्रॉफिट बन जाए, भविष्यवक्ता बन जाए. अपने जीवन पर घोषणा करना शुरू कीजिए. रेखा शे तेरे बेगला रीशे. जो चीज़ों में आपके दिल ने आपको दोष दिया है, हर रोज़, हर साल, हर महीने, हर क्षण, उन चीज़ों के खिलाफ परमेश्वर की सच्चाई को बोलना शुरू कीजिए. थैंक यू जीसस. थैंक यू दैट आई एम फॉरएवर एक्सेप्टेड लॉर्ड. That you've made me a man after your own heart, Father. That you've made me a man after your own heart, Lord. That I diligently seek you, Father. This is love, that you loved me, Lord, not that I loved you. मैं तुझसे इसीलिए प्यार कर पा रहा हूँ क्योंकि तूने मुझसे पहले प्यार किया पिता. तेरे इस गहरे प्यार के लिए धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your truth. तेरी सच्चाई के लिए धन्यवाद. रेखा था राशे दे 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 रेखाला रबो से दे रे बे. हर एक इंसान अपने मुंह को खोलकर घोषणा कीजिए इस समय. द्रेशे खाता राबा से दे रे बे. अपने शब्दों से अपने छुटकारे को स्वीकार कीजिए इस समय में. रिसीव योर ब्रेक थ्रूज राइट नाउ. ओपन योर माउथ एंड स्पीक. देखा बोरो शे दे रे बे. जीवन और मरण का सामर्थ्य आपके मुंह में है, उसको इस्तेमाल कीजिए इस समय में. देगा राशे दे रे बे. देखा राबो रो शे दे 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 खाला हादा राशे बे. My future is secured in you, Lord. Your plans for me are good. Your plans for 1,000 generations after me are good, Lord. You have chosen me from my mother's womb. Your plans for my life will be fulfilled, Father. तेरी जो योजना है मेरे जीवन के लिए वो पूरी होगी पिता. I will never fail. I will never fail, Father. No fear will ever be part of my life, Lord. I have no fear because you live in me, Father, and your perfect love is casting out all fear. भविष्य का डर मुझ में नहीं है क्योंकि तेरा परिपूर्ण प्रेम सारे डर को भगा रहा है. Thank you, Jesus. देगारा शेगाला दरा बो शेते ते दे रे रेबे दे किश्ती का लहादारा सेबेरे. अपने शब्दों से घोषणा कीजिए, दरवाज़ों को खोलिए. द्राकशा बोलो रो सीधे रेबे. आपके दिल आपको दोष दे रहे थे इतने दिनों से जिससे कि ढाढ़स नहीं आ रहा था, लेकिन इस समय परमेश्वर का प्रेम आप सबको छू रहा है. आपके अंदर से जो पवित्र आत्मा है उसमें से आपका परमेश्वर का प्रेम उमड़ के आ रहा है. रेबे दे खाला शेते रेबे सेके बेदे रे खाला रबो. I can never be rejected, Father. You are pleased with me. You are dancing over me. You are singing over me. You are madly in love with me, Father. Because of your great love, I can stand, Lord. You've accepted me in the beloved. तेरे प्रिय में, तेरे परिवार में तूने मुझे स्वीकारा, इसलिए धन्यवाद पिता. मैं कभी नकारा नहीं जा सकता हूँ. मनुष्य कौन है जब तूने मुझे स्वीकारा है, और जब तू मेरी ओर से है तो कौन मेरे खिलाफ रह सकता है पिता. द्रेखा बारा शीदे रेबे के रेबे. I submit all my insecurities into your hands, Lord. Every place, Holy Spirit, wherever I have not let you dominate in my life, come right now, Lord. I welcome you. I welcome you, Father, into all those places, all those aspects of my life.
Thank you, Jesus. 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 गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा, पर कोई नाप ना पाएगा, गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर। जो लोग पहली बार आए आगे आइए। दया का तू है। जो भी पहली बार आज आए हैं आप आगे आ सकते हैं। सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर के, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की। सिंग। ऊंचाई हर कोई नाप ना पाएगा, गहराई तेरे प्यार की। हर कोई your plans, नाप ना your purposes, Lord. पाएगा, गहराई तेरे प्यार की। Thank you, Father. We love you, Jesus. प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। थैंक यू फादर। सब अपने अपने शब्दों में आराधना करते रहिए जैसे भाई गाना गा रहे हैं। रे बिशी तेरे का सतारा बोलो रोशे बेरे बिनते रे बे। थैंक यू फादर। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू फॉर योर फेवर ऑन आवर लाइफ। प्रभु तेरे सामर्थ के लिए धन्यवाद, तेरे सुकून के लिए धन्यवाद, तेरी शांति के लिए धन्यवाद इस बहन पर। Every anxiety be broken off right now in the name of Jesus. Holy Spirit, I thank you for putting her heart at peace, that she will not know what failure is, Lord. That she will see victory in every area of her life, everything that the enemy stole from her. I thank you that you are restoring it sevenfold, Lord. I thank you for your love that is pouring out
of a spirit right now, Lord. It's healing every wound, Father. Hallelujah. हर एक जख्मों को तेरा प्रेम भर रहा है, इसलिए धन्यवाद पिता. Hallelujah. Thank you for your peace coming on her, Lord. Worthy are you, Lord, King of glory. Shedere kadara, shedere bere, segale jere bohonko. Every anxiety, every pain in the body, any infirmity, I come against you in the name of Jesus. You will leave and never come back again. In Jesus' name. सिस्टर, आपको कोई दर्द था शरीर में? कहाँ पे? चेक कीजिए. नहीं लग रहा है अभी। कब से था दर्द? बहुत दिन से है दर्द। क्या क्या करने को नहीं होता था? ये इस हाथ किए तो गिरता है। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दर्द है? पूरा गया? गया। Thank you, Jesus. Thank you, Father, for your favor. Thank you for your blessings, Lord. Thank you for my brother, Lord. Thank you for your wisdom on his life, Lord. Thank you for your wisdom. Thank you for your creativity that you've put in him, Lord. Holy Spirit, I thank you for your gifts and talents that you've already put inside him, Lord. I thank you for the direction of his life, Father. I thank you that you've made him a leader, Lord. That he will lead. I thank you for your strength, Lord. Thank you that you've given him a strong heart. A strong heart, Father. I thank you for endurance in his life, Lord. That he will not back down in the challenges that he faces, Father. Thank you for your creativity, Father. Brother, I see creative abilities that God has put in you. It is his talent. All you have to do is abide in him and let these things flow out of you. Don't let fear stop you. The creative abilities of God are filled in you. As you spend time with the Holy Spirit, these things will get more refined. Do you do art of any sort? Yes, I like art. Like I'm in IT, so I like web development. Thank you, Father. Thank you for your favor upon his life, Lord. Thank you for opening up doors which no man can shut, Father. That when he walks in the office, Father, your favor will be seen on his life. I thank you, Lord, for your wisdom to manifest from his life. Every plans and purposes that you have for him will prosper, Lord. Thank you, Father. Jesus. Thank you for my sister, Father. Thank you, Jesus, for your strength. Thank you for the gentleness. The Father loves you, sister. He's head over heels in love with you. He has accepted you in his beloved. You can never be rejected. You can never be alone. You can never be weak, because the Father has embraced you. Father, I thank you for all the desires that you've put in her life, Father. I thank you for the caring heart that you've put in her, Father. Thank you for the ministry that you've planned out for her, Lord. That she would go after you with all her heart, Lord. God wants to tell you your future is secure in him. There is nothing you have to worry about. No finances, no amount of hurdles can stop you, because God has opened doors for you which no man can shut. No power of hell can stand against you. The Father loves you. He has set his love upon you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit.
We praise you, Lord. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. There is no one else like you, Jesus. Dega ra shetere, dedere kala ra bo shetere. We give you all the glory and honor, Lord. Be exalted. Be exalted. Be exalted. Dega ra shebere, negaloru sidirebe shekara tari shabehinde. नबोरो गोलो रोशेबे। आज जो भी भविष्यवाणियां आपने अपने जीवन पर की है, परमेश्वर ने उन शब्दों को सुना है और परमेश्वर आपके विश्वास को देखकर प्रसन्न हुआ है। और ये जो शब्द है ये जाया नहीं गए हैं। इन शब्दों को परमेश्वर ने सुना है। आपने जब बोला है तो आत्मिक रेल्म में इन शब्दों ने काम करना शुरू कर दिया है। Thank you, Jesus. Father, I thank you for what you have done here today, Lord. प्रभु तेरे अगुवाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो कार्य तूने आज यहाँ पर किया है उसके लिए धन्यवाद पिता। जो कार्य का शुरुआत तूने आज यहाँ पर किया है उसके लिए धन्यवाद पिता। हमारे दिलों को तू और धाड़स दे रहा है, इसलिए धन्यवाद पिता कि तेरे सामने हम बिना डरे आएंगे। तेरे प्रेम को हम धाड़स के साथ स्वीकारेंगे, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस फॉर योर लव। प्रभु मैं विश्वास कर रहा हूं कि हर एक व्यक्ति जो यहां पर है वो तेरी योजना में चलेगा, तेरी योजना को पूरा करेगा। और जो भी रुकावट उनके जीवन में इस समय तक थे उसको तूने साफ कर दिया, इसलिए धन्यवाद पिता। ये लोग तेरे प्रेम के लिए जाने जाएंगे पिता। ये लोग आई आस्क फॉर एन एरोगेंस ऑफ योर लव फादर, that everyone in this place would know that he is loved by you. हर एक व्यक्ति यहाँ पर ये जानेगा कि पिता उनसे प्यार करता है। और इस ज्ञान के साथ, इस अनुभव के साथ हम दिन रात चलते रहेंगे, इसलिए धन्यवाद पिता। तुझे और गहराई से हम जानते रहेंगे, इसलिए धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी लव यू। हम सब बैठ जाएंगे अपनी जगह पर। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। गवाहियों का समय है। गवाहियों के समय से पहले मैं जितने भी लोग हमें देख रहे हैं ऑनलाइन, जितने भी हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज में आज जितने भी लोग नए आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। चर्च, लेट्स वेलकम देम एंड यस, थैंक यू फॉर कमिंग। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। कितने लोगों ने अभी इस समय प्रभु का प्यार उसको महसूस किया है? आमीन। बहुत ही सुंदर परमेश्वर है जिसकी हम स्तुति और आराधना करते हैं। आमीन। यस, वी हैव दैट प्रिविलेज। हम इतने सौभाग्यवंत हैं जो खुदा हमसे बात करता है। आमीन। यस, उसने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा है। तो गवाहियों का समय है। अगर आपको कोई गवाही बांटनी है, प्रभु को धन्यवाद करना है अपनी गवाहियों से, ये समय आपका है। आप यहाँ पर आगे आ सकते हैं, प्रभु को धन्य कह सकते हैं, उसके कार्य को धन्य कह सकते हैं। उसने आपके जीवन में अगर कोई कार्य किया है। अभी भी जब प्रार्थना जब हो रही थी, उस समय भी अगर प्रभु का स्पर्श आपको हुआ है, अगर आप वो बांटना चाहते हो, आप आगे आ सकते हैं। आमीन। 2 मिनट देती हूँ। डरना, ये जैसे भाई कह रहे थे कि ये पूरा परिवार है। आमीन। और ये परिवार उस खुदा के लिए इकट्ठा हुआ है जिसने यहाँ पे आज एकत्रित किया है हम सबको। तो अभी आप आ सकते हैं, आगे बात सकते हैं। 2 मिनट। आमीन। थैंक यू जीसस। बहुत सारी गवाहियाँ हमको ऑनलाइन भी आती है। जो लोग हमें अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, आप यस, ओके।
थैंक यू जीसस। हमारे पास गवाही आ रही है। सर्वांना प्रेज लॉर्ड. मी पहिल्यांदाच या चर्चला आलेले आहे. पण देवाच्या नावाला धन्यवाद देते का तर माझं पेन होतं इथं उजव्या हातात मानेला खूप दिवसापासून पेन होतं. आता प्रार्थना झाली आणि खरंच ते माझं पेन गेलं म्हणून देवाच्या नावाला धन्यवाद देते. थैंक यू जीसस, आमेन. है ना, ये सिस्टर कह रही थी कि उनको दर्द था, शोल्डर के पास उनको दर्द था, और जब ऑल्टर कॉल के समय जब प्रार्थना हो रही थी तब उनका दर्द वो चला गया. तो उसका गौरव वो पूरा प्रभु यीशु को देते हैं. आमेन. यस. सो आगे बढ़ते हैं. हर शनिवार को हमारी जो सभा है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ हर शनिवार को शाम को 6 बजे यहाँ इस समय होती है. आपको इस जगह का एड्रेस आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा. आप यहाँ पर आ सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं. आमेन. यस. और किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ के 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जो सोशल मीडिया पे चलते हैं, जो है यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम. आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. आपको सारी लिस्ट जितने भी हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे मीटिंग्स होते हैं वो सारी लिस्ट आपको प्लेलिस्ट मिलेगी. आप सुनकर प्रभु के वचन में बढ़ सकते हैं. मैन. साथ ही साथ किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ का एक और छोटा सा भाग है लेकिन वो बहुत पावरफुल है, जो है बच्चों के लिए. आमेन. जो बच्चों के लिए है वो है किंगडम बाइबल स्कूल. वो हर मंडे एंड वेडनेसडे, सोमवार और वेडनेसडे, राइट, थर्सडे फ्राइडे, वेडनेसडे फ्राइडे, आई एम सॉरी, वेडनेसडे और फ्राइडे, बुधवार और शुक्रवार को होता है. क्योंकि अभी बच्चों की एग्ज़ाम्स चल रही है, कुछ बच्चों की एग्ज़ाम्स चल रही है तो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, बट इसलिए हमने वेडनेसडे और फ्राइडे को रखा है. अदरवाइज़ हमारा वेकेशन बैच होता है जो पूरे हफ्ते के लिए चलता है. आमेन. तो आने वाले वेकेशंस में आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी. तो बच्चों को अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा होगा. आप बच्चों को एनरोल कर सकते हैं क्योंकि बच्चे वचन में बढ़ रहे हैं. इससे आनंदित चीज़ क्या हो सकती है. आमेन. है ना. बचपन से ही जब हम बच्चों को वचन के बारे में सिखाते हैं, उस पर दृढ़ रहना सिखाते हैं, तो आगे जाके आप अपने बच्चों को यहाँ पर खड़े हुए प्रचार करते हुए देखने में कितना आनंदित महसूस करोगे, राइट. तो अभी आप उनको एनरोल कर सकते हैं. वेकेशन बैच हमारी स्टार्ट होगी. और बच्चों के लिए भी हमारा 4 प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमारा डे 1 से जितने भी क्लासेस हो रहे हैं जूम पर, वो सारे आपको मिल जाएंगे. आप बच्चों को सुनाकर उसमें बढ़ा सकते हैं. और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मिल सकते हैं या फिर सिस्टर मोना यहाँ पर बैठी, आप उन्हें मिल सकते हैं. आपको सारी जानकारी बच्चों के लिए मिल जाएगी. आमेन. यस. अभी हम पास्टर जी को, हाँ, जितने भी नए लोग हैं जाने से पहले पास्टर जी को मिलकर जाना, है ना. मैं पास्टर जी को बुलाना चाहती हूँ. हालेलुया. सब लोग आशीर्वादित हुए, है ना. वचन के अनुसार हम लोग, है ना, ये विश्वास, वचन में जो लिखा है वही हमको विश्वास करना है और उसी का हमको अनुभव होना है ना. वचन में लिखा है कि परमेश्वर, है ना, यीशु मसीह ने हमको निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र ऐसा हमको बनाया है. हम अपने बल से, अपने कामों से, कर्मों से नहीं, मसीह के बलिदान की वजह से हम लोग पवित्र किए गए हैं, है ना. तो वही हमको विश्वास करना है. अगर हम वचन को विश्वास करेंगे तो वचन के हिसाब से हम लोग जीने लगेंगे, है ना. वचन के ऊपर ही हमको विश्वास करना है. वचन हमारे हृदय में, जब हम हृदय से विश्वास करेंगे तो वो वचन हमको बदल देगा. हालेलुया. मतलब जो वचन हम विश्वास कर रहे हैं वैसा ही हमारा आचरण भी होने लगेगा, वैसा ही हमारा जीवन बदलते जाएगा. इसीलिए वचन पे विश्वास करना है. दूसरा कोई चीज पे, अपने बुद्धि पे, अपने भावनाओं पे विश्वास नहीं करना है. वचन जो कहता है वही सच है, बाकी सब झूठ है. आमीन. तो हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हम सब के अंदर काम कर रहा है. आखिरी गीत गाएंगे. दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम. दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम. ये कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में. हालेलुया. ये कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में. हालेलुया. दुनिया के कोने कोने में सब लोग खड़े हो जाएंगे.
गूंज रहा यीशु का नाम दुनिया के कोने कोने में, गूंज रहा यीशु का नाम। ये कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। ये कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। ये कैसा प्यारा यीशु का नाम इस दिल में, हालेलुया। ये कैसा प्यारा यीशु का नाम इस दिल में, हालेलुया। पिंपरी के कोने कोने में बोलो, हे पिंपरी के कोने कोने में ये कैसा प्यारा यीशु का नाम पिंपरी में, हालेलुया। ये कैसा प्यारा यीशु का नाम पिंपरी में, हालेलुया। पूना के कोने कोने में बोलो, पूना के कोने कोने में ये कैसा प्यारा यीशु का नाम पूना में, हालेलुया। ये कैसा प्यारा यीशु का नाम पूना में, हालेलुया। ये कैसा प्यारा यीशु का नाम पूना में, हालेलुया। भारत के कोने कोने में बोलो, भारत के कोने कोने में ये कैसा प्यारा यीशु का नाम भारत में, हालेलुया। ये कैसा प्यारा यीशु का नाम भारत में, हालेलुया। ये कैसा प्यारा यीशु का नाम भारत में, हालेलुया। ये कैसा प्यारा यीशु का नाम भारत में, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा रहे। और पूरी कलीसिया कहेगी, एक दूसरे से सहभागिता कीजिए, मिलिए और समय पर यहां पर आइए। आमीन।